Good morning. A very warm welcome to everyone. Thank you to all for joining us today. Hope you and your loved ones are safe and healthy. To start off, I would like to firstly thank Dr. Payal Oswal for hosting this webinar today for all of us. Today, Dr. Payal will be taking up a topic that concerns a lot of us, that is managing summer health issues, beat the heat. All of us must have experienced an extreme summer this year. It is going on for the last few years due to global warming. You must have faced certain health issues like dehydration, stomach issues, and other problems, which must have affected your health in a bad way. So today, Dr. Payal will guide us and clarify queries around, what kind of lifestyle should we lead, habits that we should follow during summers, the impact of food and activities, what kind of fitness regime should be followed, and more. So let me introduce you to Dr. Payal today. She has completed her MS and has been practicing homeopathy for the last 5 years. She's a well-known dietitian in Mumbai and also owns a private clinic in Karjat. She provides consultations on diseases ranging from common cold, skin diseases, renal stone, kidney disorders, mental disorders, gastrointestinal diseases, and many, many more. So without any further ado, I would request you to take the session ahead and enlighten us, Doctor. Before we begin with the session, I'm really sorry to intervene. I would request the audience to please, drop in your queries related to your summer health issues in the chat section so that we can take them up after the session, by Doctor is over. I'll share a link with you as well where you can drop in your feedback. I would request all of you to please fill up the form after the session so that we can take your feedback and we can better the session in many ways possible. So without any further ado, please, Doctor, please go ahead with your session. Yes, Doctor, you can begin. Uh, yes. So you can put it on the slideshow mode. Yeah. Okay. So today, good morning, everyone. And the topic for today is their summer effects. So today's topic is will it is like managing summer health issues. So we'll see first slide we'll see some common illnesses and disease in summer. जैसे कि मतलब होता क्या है हमारे पृथ्वी में जब समर होता है तब हीट एलिमेंट बढ़ जाता है और ड्राइनेस बढ़ जाता है तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी हीट एलिमेंट बढ़ जाता है और ड्राइनेस बढ़ जाता है तो हमें क्या करना है हमें हीट एलिमेंट को रिड्यूस करना है ड्राइनेस को रिड्यूस करना है और कुछ ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट करनी है अपने लाइफस्टाइल में जो मॉइस्चर बढ़ाए और कूलिंग बढ़ाए तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि डिसीजेस और इलनेस कौन से हो सकते हैं हम लोग को समर में तो फर्स्ट इज लाइक डिहाइड्रेशन फिर सनबर्न हीट स्ट्रोक फंगल इन्फेक्शन फूड पॉइजनिंग नाक से खून बहना चक्कर आना है किसी किसी को हेडेक होता है समर में ज़्यादा एक्सट्रीम समर टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो ये सब कॉमन इलनेसेस है जो हमें डे टू डे लाइफ में दिखती है तो फर्स्ट हम लोग देख लेंगे कि डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में से जो एक्सेसिव वाटर लॉस होता है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है हम लोग क्या करते हैं कभी कभी मतलब हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं ड्यू टू आवर वर्क उसकी वजह से क्या होता है हमारे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से एक्सेसिव वाटर लॉस होता है बॉडी से और पानी कम पीने में आता है तो इसके सिम्टम्स क्या है बहुत ज़्यादा प्यास लगना यूरिन बहुत डार्क येलो हो जाती है स्मेली हो जाती है लिप्स माउथ और आईज ड्राई हो जाते हैं फिर यूरिन पास लिटिल हो जाता है एट अ टाइम मतलब 4 बार से भी कम आप यूरिन पास करते हो पूरे दिन भर में कभी फटीक होता है फिर थोड़ा सा लाइट हेवी हेडेक हो सकता है किसी किसी को
ये सब कॉमन सिम्टम्स है डिहाइड्रेशन के। तो इसे हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे कि हमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, पानी हमें बहुत ज़्यादा पीना है। समर इज लाइक पानी में समर में पानी हमें मतलब एडिक्वेट अमाउंट में पीना है। दिन भर में हम लोग 2.5 से 3 लीटर पानी पी सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी समर में तो थोड़ा और ज़्यादा पीना चाहिए एवरेज, और रेगुलर इंटरवल में पीना चाहिए। कोई कोई लोग कैसे करते हैं, सुबह 1 लीटर पी लिया, फिर शाम को याद आया तो शाम को दूसरा लीटर पी लेंगे। ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं करना है, उससे आपको आपकी बॉडी ये नहीं करेगी, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। इससे बेटर है आप रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। फिर हमें इंक्लूड करना है वाटर रिच फूड्स। वाटर रिच फूड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, क्यूकुम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सारे वाटर रिच फूड्स है, ये हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है। और टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, फिर हमें कूलिंग ड्रिंक्स भी लेने हैं। कूलिंग ड्रिंक्स जैसे लेमन वाटर हो गया, चिया सीड्स का पानी हो गया, फिर कोकोनट वाटर है, शुगर केन जूस है, ये सारे कूलिंग ड्रिंक्स है। और दोपहर में अगर अच्छा क्वांटिटी का बटर मिल्क होममेड हो तो बटर मिल्क भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिसीज जो मतलब नेक्स्ट इलनेस जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है सनबर्न। सनबर्न एक टाइप ऑफ स्किन डिसीज है जो बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा अगर हम लोग धूप में जाए तो उसकी वजह से सनबर्न हो सकता है। फिर सिम्टम्स क्या है इसके, जैसे कि स्किन रेड होती है, फिर इची हो जाती है, हॉट हो जाता है टच से, फिर ब्लिस्टर्स भी हो सकते हैं, किसी किसी को सर्कुलर ब्राउनिश मैक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स है सनबर्न के। और इसके प्रिकॉशंस हम लोग को क्या लेने हैं, जैसे कि सन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। अब सन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में क्या क्या आता है, हमें अपने बॉडी को पूरी तरह से कवर करना है, और लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने हैं। डार्क कलर क्लोथ्स जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि डार्क कलर जो होता है ना वो सन एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कलर क्लोथ्स सन को रिफ्लेक्ट करता है। ये सब हमें करना है। फिर आइस पैक यूज कर सकते हैं, एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, सन ब्लॉक क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम, ये सब आते हैं। मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, सो दैट डिहाइड्रेट ना हो और सनबर्न ना हो। फिर नेक्स्ट स्लाइड है हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर और फिजिकल एक्सर्शन इन हाई टेम्परेचर, मतलब हम लोग अगर बहुत ज़्यादा देर तक बहुत हैवी एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्सर्शन समर में, या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, धूप में हम लोग अगर होंगे, तब हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। यानी कि जो लेबरर्स वगैरह होते हैं जो बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं, उनका मतलब वर्क ही लेबर का काम धूप में ही ज़्यादा होता है, तो उन्हें भी मतलब ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके सिम्टम्स क्या है कि स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, पेल हो जाती है और हॉट हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रोफ्यूज हो जाता है। फिर किसी किसी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। फिर रैपिड पल्स वगैरह होते हैं, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है, किसी किसी को लूज मोशंस हो सकते हैं, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस में। इवन अनकॉन्शियस भी होते हैं लोग वर्टाइगो वगैरह होके। तो ये सारे सिम्टम्स है हीट स्ट्रोक के। फिर इसके लिए प्रिकॉशंस हमें क्या लेना है, हमें धूप में जाने से पहले वी नीड टू कवर आवर हेड और विद स्कार्फ, hat or umbrella. We should always carry with us either a umbrella or wear a hat. Then we should always मतलब हमें लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहनने हैं, जो लाइट कलर्ड हो, जो कॉटन हो। सिंथेटिक और टाइट क्लोथिंग समर में जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, और हैवी वर्कआउट इन सन में भी अवॉइड करना है। हमें लाइट एक्सरसाइजेस करनी है, आप योगा भी कर सकते हो।
या फिर जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है सन में, वो अवॉइड करना है। फिर उसके बाद आता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन और हीट रैश को गमोरिया भी कहते हैं। और ये हीट रैश होता है फंगस की वजह से, जो हमारे स्किन पर एक इन्फेक्शन है, वो स्प्रेड होता है स्किन पर, टिश्यूज में भी जा सकता है, बोन में भी हो सकता है और ऑर्गन में भी हो सकता है। लेकिन समर में ज्यादातर स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन दिखता है, बढ़ जाता है। वो किस वजह से बढ़ जाता है? क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, हीट एलिमेंट बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, उसकी वजह से फंगस होने के चांसेस, मतलब इट इज वेरी कॉमन। तो उसके सिम्टम्स क्या है? स्किन रैश हो जाना, रेडनेस होना, ड्राइनेस, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फिर ईचिंग होना, स्वेटिंग की वजह से रेड होती है स्किन। फिर उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमें? हमारी स्किन को क्लीन रखना है, हाइजीनिक रखना है और ड्राई रखना है। वी नीड टू, मतलब 2 बार दिन में, 2 बार एटलीस्ट हमें नहाना है। और हमें गर्म पानी में अपने कपड़े वॉश करके सन के अंदर सुखाना है। एंड लास्ट थिंग इज लाइक वी नीड टू यूज कैंडल डस्टिंग पाउडर। जहाँ जहाँ पे भी आपको रेडनेस, रैशेस वगैरह दिखने लगे, वहाँ पे आप कैंडल डस्टिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीज हमें अवॉइड करनी है कि हमें दूसरों के पर्सनल चीजें और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है, शेयरिंग अवॉइड करना है, दूसरों के टॉवल्स वगैरह और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करना अवॉइड करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो इलनेस है, जो है फूड पॉइजनिंग। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि लोगों को समर में किसी हीट एलिमेंट बढ़ जाने की वजह से एसिडिटी बढ़ती है, फिर किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं समर में। तो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और टॉक्सिन्स, ये जब हमारे बॉडी में आ जाते हैं ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड, तो उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो फूड पॉइजनिंग कैन बी सीवियर टू लाइक वेरी माइल्ड। तो सीवियर केसेस में बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, फिर डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, लूज मोशंस वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं, पेशेंट को डिहाइड्रेट हो जाता है, ये सब सीवियर कैटेगरी में आते हैं। फिर जो माइल्ड में होता है वो है नॉर्मल डायरिया, फिर स्टमक पेन, नोशिया, वॉमिटिंग, किसी किसी को ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस भी हो सकता है। फिर इसके प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने हैं? हमें आउटसाइड फूड और अनकवर्ड फूड अवॉइड करना है, जितना हो सके हमें घर का हेल्दी खाना खाना है, और ये आउटसाइड फूड अवॉइड करना है। और अनहाइजीनिक और अनहेल्दी फूड तो मतलब बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अनहाइजीनिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और अनहेल्दी भी नहीं खाना चाहिए। जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं वो नहीं खाने हैं। फिर ऑयली, स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि स्पाइसी जो एलिमेंट होता है वो हमारे बॉडी में हीट जनरेट करता है, उसकी वजह से हमें एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकते हैं। इसलिए